اور اس ٹویٹ سے الحمدللہ یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو خاص کر پاک آرمی کے کلوز آدمی ہیں، پاک آرمی کے اندر کے جو لوگ ہیں، وہ اس ٹائم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ٹائم پاک آرمی کو کوئی فل سپورٹ کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک کر رہی ہے۔ نہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے، نہ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ہم ایماندار ہیں۔ جو تحریک لبیک ان کے اوپر الزام لگاتی ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، نیچے مینشن کر رہے ہیں کمنٹ میں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو پاکستان آرمی کے اوپر الزام لگا رہی ہے وہی الزام امریکہ لگاتا ہے، وہی الزام اسرائیل لگاتا ہے، وہی الزام انڈیا لگاتا ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ محب وطن ہے، وہ ان فوجیوں کو ننگا کر رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اسرائیل بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ جو ان کا بیانیہ ہے وہی بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کی ایمانداری، آپ کی محب وطنی، آپ کی اسلام سے دلچسپی کی گواہی آپ کے مخالفین دیں گے۔ جی ہاں، جس طرح تحریک لبیک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم اسلام پسند ہیں، اسی طرح وہ دوسری پارٹیوں کے اوپر الزام بھی لگاتی ہے، خاص کر پی ٹی آئی کے اوپر، کہ نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، یہ سب غدار ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے۔ ابھی ناظرین میرے سامنے ایک ٹویٹ آیا، میں بہت دلچسپ ٹویٹ ہے، اور وہ ٹویٹ کیا ہے ایک اکاؤنٹ ہے DGISPR کے نام پہ، 50,000 اس کے فالوور ہیں، یعنی کہ ویریفائی اکاؤنٹ ہے، اور یہ کوئی خاص یعنی کہ ایجنسیوں کے آدمی ہے، پاک آرمی کا آدمی ہے، وہ یہ ٹویٹ چلا رہا ہے۔ ٹوٹل اس میں جو ٹویٹس آتے ہیں وہ پاکستان آرمی کے حق میں آتے ہیں۔ DGISPR کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، پاکستان کے آرمی ادارے کو یہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ خاص ادارے کا آدمی ہی چلا رہا ہے، کیونکہ اس نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا ہوا ہے، صرف ایک DGISPR کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا، بہت زبردست اور بہت دلچسپ ٹویٹ کیا۔ اب ناظرین اس ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے۔ اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان آرمی کو 4 قسم کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ غور کرنا، اس نے نام کس کا لیا؟ پاک آرمی کا، یعنی پاکستان کی جتنی بھی پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کا جو ادارہ ہے پاک آرمی، اس کا اس نے نام لیا ہے۔ پاک آرمی کو 4 قسم کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ایک سمجھدار، دوسرے ایماندار، تیسرا اسلام پسند، اور چوتھا محب وطن۔ یہ 4 خوبیاں جس میں ہوں گی وہ پاکستان کے ادارے کو، پاک آرمی کو سپورٹ کریں گے۔ اب ناظرین جب یہ ٹویٹ سامنے آیا تو اس ٹویٹ میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے نام مینشن کیا ہے پاکستان آرمی کا۔ اب اس ٹائم پاکستان آرمی کی سب سے بڑی دشمن جو جماعت پی ٹی آئی ہے، اس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم پاکستان آرمی کے وفادار ہیں، ہماری آرمی نوجوانوں سے، پاکستان کے ادارے سے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو، لیکن چند ایک جرنیلوں کے ہم خلاف ہیں۔ یہ اس ٹائم بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، جب سب سے بڑی پی ٹی آئی کی دشمن جماعت اپنا پاک آرمی کی، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہیں۔ تحریک لبیک کا تو ویسے ہی دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں تحفظات ہونے کے باوجود، تو پی ٹی آئی کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اب جب پی ٹی آئی سمجھتی ہے، یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں، تحریک لبیک بھی کہتی ہے، نون لیگ بھی کہتی ہے، تو اب ثابت کیا کرنا تھا کہ بھائی ہم محب وطن ہیں، ہم اسلام پسند ہیں، ہم یعنی کہ ایماندار ہیں۔ جو 4 شرائط رکھی گئی ہیں تو ہر آدمی کو یہ ثابت کرنا تھا، تحریک لبیک والوں کو ثابت کرنا تھا کہ دیکھو جی یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر ہیں، پی ٹی آئی والوں کو، نیو لیگ والوں کو۔ تو ان کی اس ٹویٹ کے نیچے جو کمنٹ آیا ہے پی ٹی آئی کے، ان کمنٹ میں ان کی جہلیت، ان کا جھوٹ، ان کی منافقت، یعنی ثابت تو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ہم محب وطن ہیں، ہم اسلام پسند ہیں، ہم یعنی کہ ایماندار ہیں،
तो वो नीचे पसंद कर रहे हैं कि हम यहूद व नसारा के एजेंट हैं, ना हमारा इस्लाम से तल्लक है, ना हमारा पाकिस्तान से तल्लक है, ना हम ईमानदार हैं। जो तहरीक लबैक उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया है वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, नीचे मेंशन कर रहे हैं कमेंट में। मैं आप लोगों के सामने रखूंगा नाज़रीन। अब ये जो चार है, अब तहरीक लबैक तो कहती है कि हम इस्लाम पसंद हैं। साद रिजवी साहब कई बार कहा है कि भाई मुहब्बे वतन तो है मैं, पाकिस्तान के वारिस तो है मैं, ये लोग तो सब गुलाम हैं। ठीक है, ये तहरीक लबैक वाले कहते हैं। अब पीटीआई वाले भी कहते हैं कि भाई इमरान खान रियासत मदीना का यानी कि वो तो मुर्शिद है, वो तो इस्लाम पसंद है, वो तो रियासत मदीना बनाना चाहता, वो तो ईमानदार है, जो शराइत है वो तो ईमानदार है। इमरान खान तो मुहब्बे वतन है, वो तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जाता है। तो भाई अगर चार उसमें ये शराइत हैं तो फिर पाकिस्तान आर्मी को भी आप कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, हम तो जर्नैलों के खिलाफ हैं। तो नाजरीन, इन लोगों ने जो कमेंट की है, इन कमेंट में देखना कि इनकी जहलियत, हम जो इनके ऊपर एतराज करते हैं ना, इल्जाम लगाते हैं, तो ये समझते हैं कि ये हमको बुरा भला कहते हैं। हम इनको कहते हैं कि वो जहलो, तुम्हारे जहलियत की वजह से आपके ऊपर मुश्किल बनी हुई है। आप जो मुखालफिन के ऊपर इल्जाम लगाते हो, जो तुहमत लगाते हो, जो साजिश करते हो, मुखालफिन को कुछ हो जाना हो, आप अपने लीडर को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपनी जहलियत साबित कर रहे हो। अब नीचे कमेंट इसके ऊपर कम अज कम 700-800 कमेंट आए, जिसमें 100% जो पीटीआई के कमेंट आए, मुख्तलिफ लोगों ने किए हैं। इसमें कई पीटीआई के यानी कि बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने 100% पीटीआई की कमेंट ने इस जो पोस्ट है इसके ऊपर डीजीएसपीआर पाकिस्तान आर्मी को गालियां निकाली हैं। इतने बुरे कमेंट किए हैं जो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो मैं आपको बता सकता हूं। नीचे एक लिखता है, खुसरे भी बहुत सपोर्ट करते हैं, कहते हैं पाक फौज हमारे जैसी है और हम भाई भाई हैं। यानी कि ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज, यानी उसने नाम लिया था पाकिस्तान आर्मी का, जर्नैलों का नाम नहीं लिया था, पाकिस्तान अदारे का लिया था। और हम कहते हैं कि ये यहूदों ने सारा के एजेंडे के ऊपर चलने वाले हैं, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अदारे को बदनाम करना इमरान खान की जो ड्यूटी थी, इमरान खान जिस मकसद के लिए आया था, वो आज जूठी पोर कर है। तो ये क्या कहता है कि पाकिस्तान आर्मी खुसरे है। अगर ये मुल्क फौज के बगैर बन सकता है तो चलने में क्या मुश्किल है। यानी कि अगर पाकिस्तान की फौज नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लिखता है, ये चारों सफात अब सिर्फ खुसरों में पाई जाती हैं, बाकी सब बेअक्ल, बेईमान, इस्लाम दुश्मन और गद्दार हैं। यानी कि इसने कहा है कि ये चार सफात खुसरे, यानी कि आप में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में पाई जाती हैं, बाकी सब यानी बेईमान। नाजरीन, इसमें 100% जो कमेंट्स पीटीआई के हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को गाली निकाली। अब इन गाली निकालने की वजह से अब ये क्या क्या साबित हो गए। सबसे पहली बात है कि इनकी जहलियत साबित हो गई कि भाई उसने पाकिस्तान आर्मी का नाम लिया है, एज ए अदारे का नाम लिया है, उसने किसी जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया है। तो आपने मुनाफका, यानी कि जो आप कहते हो ना कि भाई हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि जो उनका झूठ है वो सामने आ गया है कि ये पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं करते। ये यहूदों ने सारा इसराइल, इंडिया, अमेरिका के एजेंडे के ऊपर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं जब से इमरान खान नीचे उतरा था, आज से 1.5-2 साल पहले मैंने कहा था, कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि इसका जो मकसद है पीटीआई का, तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करना, पाकिस्तान आर्मी को जलील करना, इसको डिग्रेड करना, वो काम करना कि जो अमेरिका कर रहा है, जो इसराइल कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है। यानी कि ये झूठ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। कल मुझे एक यूथी ने कमेंट किया फेसबुक के ऊपर कि भाई 90% पाकिस्तान की जो आवाम है इमरान खान के साथ है, 90% पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इमरान खान के साथ है। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, जैसा यूथिया, जैसा मुंह होगा वैसी चपेड़ होगी। मैंने उसको कहा है कि 90% पाकिस्तानी आवाम भी आपके साथ, आपके बकौल 90% आपकी फौज भी आपके साथ। तो लखदी लानत है कि आप खुसरों से मार खा रहे हैं। अगर इतनी ताकत होने के बावजूद आप अभी तक पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका होता, पाकिस्तान तब्दील हो चुका होता, लेकिन आप चूड़ियां पहन के घर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नाजरीन कितना खूबसूरत आप, यानी कि आप इख्तलाफ करते हैं जर्नलों से। मैं भी कहता हूं जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कितनी तकरीरें की हैं साद रिजवी साहब ने,
इस इलेक्शन के हवाले से इसके ऊपर कितने इल्जाम है। बार बार तहरीक लबैक ने कहा है कि भाई आप जिस तरह हुकूमत चलाना चाहते हैं नहीं चला सकते, लेकिन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान आर्मी का अदारा है उससे हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, अदारा हमारा है, उसमें जर्नल, उसमें जो लीडरशिप है वो आती रहती है, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन पीटीआई का इस टाइम जो मकसद है वो पाकिस्तान के आर्मी अदारे को बदनाम करना, उनको जलील करना, उसको पूरी दुनिया में रुस्वा करना। इसकी सबसे बड़ी सादा सिंपल सी मिसाल है, चैलेंज है मेरे को, किसी भी पीटीआई के सपोर्टर सुन रहा है कि इस वक्त पीटीआई जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा रही है वही इल्जाम अमेरिका लगाता है, वही इल्जाम इसराइल लगाता है, वही इल्जाम इंडिया लगाता है। क्या लगाता है कि ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, ये दहशतगर्दों को पालते हैं, ये अपने बंदे अगवा करते हैं, ये मिसिंग पर्सन पूरे पाकिस्तान आर्मी, ये सब कुछ कौन इल्जाम लगा रहा है? इस वक्त लगा रहा है पीटीआई। और यही इल्जाम लगाती है अमेरिका, यही इसराइल लगाता है, यही इंडिया लगाता है। इंडिया के चैनल में जाओ, वो कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी तो दहशतगर्द है, ये तो दहशतगर्द पालती है। तो इससे यह बात वाज़ेह हो गई कि जिस तरह पीटीआई पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतन है, वो इन फौजियों को नंगा कर रही है, तो इसका मकसद है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, इसराइल भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, इंडिया भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। जो इनका बयानिया है वही बयानिया पीटीआई का है। तो सिंपल और सादा सी बात है कि कम अकलों के जहन में अगर कोई चीज ना आए तो कम से कम ये चीज तो जहन में आती है कि अगर बयानिया आपको समझ नहीं आ रहा है, सादे समझ नहीं आ रही है, तो ये तो आपको समझ आया ना कि कम से कम अमेरिका, इंडिया, इसराइल पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अगर आप आपका इसके ऊपर यकीन है कि इंडिया पाकिस्तान, इसराइल पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर आंखें बंद करके कहो कि इस टाइम जो पीटीआई का बयानिया है वो इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान का बयानिया है। और इस ट्वीट से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी साबित हो रही है कि जो खास कर पाक आर्मी के क्लोज आदमी है, पाक आर्मी के अंदर के जो लोग हैं, वो इस टाइम समझते हैं कि अगर इस टाइम पाक आर्मी को कोई फुल सपोर्ट कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक कर रही है। इस ट्वीट ने ये साबित कर दिया है कि वो इस चीज से बाखबर है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।